Hello and welcome students. In this video I'll explain you the next chapter of Vistas, that is On the Face of It, written by Suzanne Hill. First of all, I'll give you some information about the author of this story. Suzanne Hill is an English author of fiction and non-fiction works. Her novels include The Woman in Black, The Mist in the Mirror, and I Am the King of the Castle, for which she received the Somerset Maugham Award in 1971. सुजैन हिल फिक्शन और नॉन फिक्शन राइटिंग वर्क्स की एक इंग्लिश ऑथर हैं और उनके नॉवेल्स में शामिल हैं वुमेन इन ब्लैक, द मिस्ट इन द मिरर और आई एम द किंग ऑफ द कैसल, जिसके लिए उन्हें सोमरसेट मॉघम अवार्ड भी दिया गया 1971 में. Now students, I'll give you a brief intro of this chapter. The story is about a teenage boy, Derry, who has a burnt face, and Mr. Lamb, who is a disabled old man with an artificial leg made of tin. Derry accidentally enters his garden so that he can hide himself from people who hate him because of his ugly face. Mr. Lamb not only welcomes him in his garden but also encourages him to lead a normal life, leaving behind his past. ये कहानी है एक टीनेज बॉय डेरी की जिसका चेहरा जला हुआ था और मिस्टर लैम्ब की जो कि एक डिसेबल्ड ओल्ड मैन थी जिनकी एक टांग आर्टिफिशियल थी जो कि टिन की बनी हुई थी. डेरी एक्सीडेंटली उनके गार्डन में एंटर करता है ताकि वो अपने आप को उन लोगों से छुपा सके जो उससे नफ़रत करते हैं उसकी जले हुए अगली फेस की वजह से. मिस्टर लैम्ब न सिर्फ उसको अपने गार्डन में वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, बल्कि उसको एनकरेज करते हैं एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए अपने पास्ट को पीछे छोड़कर. Now students, I'll explain you the story in detail. The first scene is located in Mr. Lamb's garden. There is an occasional sound of bird song and of tree leaves rustling. Derry's footsteps are heard as he walks slowly and hesitantly through the long grass. He comes round a screen of bushes. When Mr. Lamb speaks to Derry, he is close at hand. Naturally, Derry is startled. फर्स्ट सीन मिस्टर लैम्ब के गार्डन का है. कभी कभी वहाँ पर बर्ड्स के सॉन्ग की और कभी कभी पत्तों के खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है और जब वह घास में धीरे धीरे तथा हिचकिचाता हुआ चलता है तो डेरी के जो फुट स्टेप्स हैं उनकी आवाज़ सुनाई देती है. वह झाड़ियों की एक कतार के पीछे से निकलता है. जब मिस्टर लैम्ब डेरी से बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा उनके नज़दीक था, सिर्फ एक हाथ की दूरी पर था. नेचुरली डेरी उनको देखकर चौंक जाता है, घबरा जाता है. Mr. Lamb asks Derry to mind the apples. Derry inquires about the person. Mr. Lamb gives his name and again asks him to mind the apples. He adds that those are crab apples. They have been blown down from the tree by the wind and are lying in the long grass. The boy could step on one of them and fall. मिस्टर लैम्ब डेरी से एप्पल्स का ध्यान रखने को कहता है, यानी कि सेबों का ध्यान रखने को कहता है. डेरी उस आदमी से उसके बारे में पूछता है. मिस्टर लैम्ब अपना नाम बताते हैं और उसे फिर से सेबों का ध्यान यानी एप्पल्स का ध्यान रखते हुए चलने के लिए कहते हैं. वो कहते हैं कि ये कड़वे जंगली सेब हैं, क्रैब एप्पल्स हैं, जो कि तेज़ हवा की वजह से पेड़ों से गिर गए हैं और घास में पड़े हुए हैं और ये लड़का उनमें से किसी एक पर पैर रख सकता था और गिर सकता था. Derry tries to explain. He says that he thought that was an empty place. He did not know there was anybody there. Mr. Lamb asks him not to be afraid. He explains that the house is empty since he is out in the garden. He observes that such a beautiful day is not worth spending indoors. डेरी उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है. वो कहता है कि उसने सोचा था कि वो जगह एम्प्टी है, खाली है और उसे नहीं पता था कि वहाँ पर कोई है. मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि उसे डरने की ज़रूरत नहीं है. वो एक्सप्लेन करते हैं कि घर खाली ही है क्योंकि वो गार्डन में है.
वो एक्सप्लेन करते हैं कि इतना सुंदर दिन है कि वो घर के अंदर गुजारने लायक नहीं है, उसे बाहर एंजॉय करना चाहिए। Derry panics and says that he has got to go. Mr. Lamb assures him that he should not feel disturbed on his account. He doesn't mind who comes into the garden. The gate is always open. It was only the boy who climbed the garden wall. Derry is angry that the old man had been watching him. Mr. Lamb welcomes Derry. डेरी घबरा जाता है और वो कहता है कि उसे वहाँ से जाना होगा। मिस्टर लैम्ब उससे कहते हैं कि उसे उनके कारण परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो परवाह नहीं करते कि उनके गार्डन में कौन आता है। उनके गेट हमेशा सभी के लिए खुले हुए हैं। ये तो सिर्फ वो लड़का था जो कि गार्डन की वॉल क्लाइंब करके फांद कर वहाँ पर आया था। डेरी को ये जानकर जो है कि ओल्ड मैन उसको वॉच कर रहा था, उसको ध्यान से देख रहा था, उसे गुस्सा आ जाता है। मिस्टर लैम उसका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। Derry explains that he had not come to steal anything. Mr. Lamb assures him that he had not. He further adds that only the young lads steal. They steal apples from the garden. He is not that young. Derry explains that he just wanted to come into the garden. He wants to go and says goodbye. डेरी यहाँ ये क्लियर करना चाहता है, स्पष्ट करता है कि वो वहाँ कोई चीज़ चुराने नहीं आया था। मिस्टर लैम उसे आश्वस्त करते हैं कि वह उसके लिए नहीं आया था। वह आगे कहते हैं कि ये सिर्फ छोटे छोटे बच्चे चोरी करते हैं। वे जो है गार्डन से एप्पल चुरा लेते हैं और वो इतना छोटा नहीं है। डेरी क्लियर करता है कि वो तो सिर्फ गार्डन में आना चाहता था, वो जाना चाहता है और वो उससे गुड बाय कहता है। Mr. Lamb tells him that there is nothing to be afraid of. It is just a garden, and only one person, that is, he himself, is there. Derry then says that people are afraid of him. He asks Mr. Lamb to look at him, and after seeing his face, he might think that he is the most frightful and ugliest thing. Derry says that when he looks in the mirror and sees his face, he is afraid of it. Mr. Lamb says that the whole of his face is not frightening. मिस्टर लैम उससे कहते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, यह तो सिर्फ एक गार्डन है और वो वहाँ पर अकेला इंसान है, वो खुद। डेरी फिर कहता है कि लोग डेरी से यानी कि उससे डरते हैं। मिस्टर लैम को वो अपनी ओर देखने के लिए कहता है और सोचता है कि उसका चेहरा देखने के बाद शायद वो सोचेगा कि यह संसार का सबसे ज़्यादा डरावना और बुरा यानी कि कुरूप चीज़ है, वस्तु है। डेरी कहता है कि जब वो मिरर में अपना चेहरा देखता है तो उसे अपना चेहरा जो है बहुत डरावना दिखाई देता है, वो उससे डर जाता है। मिस्टर लैम कहते हैं कि उसका पूरा चेहरा डरावना नहीं है, भयावह नहीं है। There is pause. Mr. Lamb now changes the topic. He says when it is a bit cooler, he will get the ladder and a stick and pull down those crab apples. They are ripe for making jelly. September is the right time of year for it. The apples look orange and golden. He tells Derry that he could help him. अब थोड़ा पॉज आता है। मिस्टर लैम बातचीत का टॉपिक चेंज कर देते हैं। वो कहते हैं कि जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो वो एक सीढ़ी लेकर आएंगे और एक स्टिक लेकर आएंगे और उन कड़वे सेबों को तोड़ेंगे, वो जो क्रैब एप्पल्स हैं उनको तोड़ेंगे। वे उसकी जेली बनाएंगे, मुरब्बा बनाएंगे, वो उसके लिए तैयार हैं एप्पल्स। और इसके लिए सितंबर जो मंथ है वो सबसे अच्छा समय रहता है। और सेब जो है वो ऑरेंज कलर के और सुनहरे रंग के दिखाई दे रहे थे। वो डेरी से कहते हैं कि वो उसकी मदद कर सकता है। डेरी आस्क हिम व्हाट ही हैज़ changed the subject for. He says that the old man does not ask him because he is afraid to do so. Derry says that he does not like being with people. Mr. Lamb makes a guess. Perhaps the boy got burnt in a fire.
Derry says that he got acid all down that side of his face and it burnt it all away. Derry asks Mr. Lamb if he is not interested. The old man says he is interested in anybody and anything made by God, even grass, rubbish, weeds, flowers, fruit. He observes that it is all life developing, just as they are. डेरी मिस्टर लैम्ब से पूछता है कि उन्होंने बातचीत का टॉपिक क्यों बदल दिया है। वो कहता है कि वो ओल्ड मैन जो है वो उससे इसलिए नहीं पूछता है क्योंकि वो ऐसा करने से डरता है। डेरी कहता है कि वो ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है उसे। मिस्टर लैम्ब एक गेस लगा करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि शायद लड़का आग में जल गया था। डेरी कहता है कि उसके चेहरे के उस तरफ जो है जिस साइड वो जला हुआ है एसिड गिर गया था और वो जल गया था। डेरी उस ओल्ड मैन से कहता है कि क्या उसे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। ओल्ड मैन कहता है कि गॉड की बनाई हुई प्रत्येक वस्तु में, हर एक चीज़ में और हर एक इंसान में वो रुचि रखता है, इंटरेस्ट रखता है। चाहे वो घास हो, कूड़ा, खरपतवार, फूल या फल, कुछ भी हो। वो कहता है कि ये सभी ज़िंदगी के, जीवन के रूप हैं, लाइफ के जो है रूप हैं। इसी तरह वो विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं जैसे कि हम इंसान। When Derry says that they are not the same, Mr. Lamb says that there is no difference. He is old, Derry is young, and has got a burnt face. The old man has got a tin leg. His real one got blown off years back in the war. Some kids call him Lamb, but it doesn't disturb him. There are plenty of things other than his leg to stare at. He refers to Beauty and the Beast. Derry says that no one will kiss him, he won't change. जब डेरी कहता है कि वो सेम नहीं है तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। वो ओल्ड है, डेरी यंग है और उसका चेहरा जला हुआ है। ओल्ड मैन की एक टांग जो है वो आर्टिफिशियल है। उसकी जो असली टांग थी वो सालों पहले एक वॉर में एक जो है विस्फोट होने की वजह से उड़ गई थी, एक ब्लास्ट होने की वजह से उड़ गई थी और कुछ बच्चे जो हैं उससे लंगड़ा लैम्ब कहकर, लैमे लैम्ब कहकर पुकारते हैं, लेकिन इससे वो परेशान नहीं होता। उसकी टांग को छोड़कर काफ़ी अन्य चीज़ें हैं, काफ़ी और चीज़ें हैं जिन्हें देखा जा सकता है। वो ब्यूटी एंड द बीस्ट की तरफ इशारा करता है। डेरी कहता है कि उसको कोई भी किस नहीं करेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा, उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं आएगा। Derry says that people talk about persons who are in pain and brave and never cry or complain and don't feel sorry for themselves. People try to console people suffering from physical impairment by asking them to think of all those people worse off than them. They might have been blinded or born deaf or have to live in a wheelchair or be insane and dribble. But all this will not change his face. Even totally strange persons call him terrible. टेरी कहता है कि लोग उन लोगों के बारे में बातें करते हैं जो दर्द में हैं, पेन में हैं और बहादुर हैं और कभी रोते, चीखते या शिकायत नहीं करते और खुद के लिए कभी जो है उन्हें दुख महसूस नहीं होता, कभी वो सॉरी फील नहीं करते और शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को यह कहकर सांत्वना देने का, कंसोल करने की कोशिश करते हैं कि उन लोगों के बारे में सोचें जो कि उनसे भी कहीं अधिक ख़राब पोजीशन में हैं, स्थिति में हैं। वो अंधे हो सकते थे, जन्म से बहरे हो सकते थे या अपंग हो सकते थे या फिर जो पहिए वाली कुर्सी में ही पड़े रहते या फिर पागल भी हो सकते थे या उनकी जो है लार टपकती रह सकती थी, लेकिन यह सब उनके चेहरे को नहीं बदल पाएगा। बिल्कुल अजनबी व्यक्ति भी उससे भयावह पुकारता था, डरावना पुकारता था। Derry repeats that he doesn't like being near people, especially when they stare at him and when he sees them being afraid of him. Mr. Lamb then tells him the story of a man who was afraid of everything in the world, so he locked himself in his room and stayed in his bed. A picture fell off the wall onto his head and killed him.
डेरी फिर दोहराता है कि उसे लोगों के नज़दीक रहना पसंद नहीं है, ख़ास तौर से उन लोगों के नज़दीक जो उसे घूर घूर कर देखते हैं और उससे डरते हैं। मिस्टर लैम फिर उसे उसे एक कहानी बताते हैं एक ऐसे इंसान की जो हर चीज़ से डरता था, इस दुनिया में हर चीज़ से डरता था और इसलिए अपने आप को वो एक कमरे में बंद कर लेता है और अपने बेड पर पड़ा रहता है और दीवार पे से एक पिक्चर उसके ऊपर गिर जाती है, उसके सिर के ऊपर गिर जाती है और वो मर जाता है। Derry says that the old man said peculiar things. Then he asks what he does all day. Mr. Lamb replies that he sits in the sun, he reads books, his house is full of books. His house has no curtains as he does not like shutting things out. He likes the light and darkness. He hears the wind from the open window. Derry too hears the sound of the rain on the roof when it is raining. Mr. Lamb observes that if he hears things, he is not lost. Derry says that people talk about him downstairs when he is not there. They seem to be worried about him and his future. Mr. Lamb gives him a very inspiring advice. He will get on the way he wants like all the rest as he has all the God given organs. He could even get on better than all the rest if he determined to do so. डेरी उस बूढ़े आदमी से उस ओल्ड मैन से कहता है कि वो अजीब बातें करता है। फिर वो उससे पूछता है कि वो पूरा दिन क्या करता रहता है। मिस्टर लैम जवाब देते हैं कि वो धूप में बैठते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, उनका घर किताबों से भरा पड़ा है और उनके घर में पर्दे भी नहीं हैं क्योंकि वो बाहर की चीज़ों को बंद करना नहीं चाहते। उन्हें लाइट और डार्कनेस यानी कि रोशनी और अंधेरा पसंद है। वो ओपन विंडो से खुली खिड़की से हवा की आवाज़ सुनते हैं। डेरी भी छत पर हो रही बारिश की आवाज़ सुनता है। मिस्टर लैम महसूस करते हैं कि जब वो चीज़ों की आवाज़ सुनता है तो वो उनमें खो नहीं जाता है। डेरी कहता है कि लोग जो है नीचे उसके बारे में बातें करते हैं जब वो वहाँ नहीं होता। वो लोग उसके भविष्य को लेकर चिंतित होते हैं, उसके बारे में चिंतित होते हैं। मिस्टर लैम उसको एक जो है इंस्पायरिंग एडवाइस देते हैं, एक राय देते हैं कि वो जो है हर काम अपने तरीके से करे जैसे वो करना चाहता है। उसे भगवान ने जो है प्रॉपर ऑर्गन्स दी हैं, सिर्फ उसका चेहरा जला हुआ है, अदरवाइज़ वो काफ़ी फिट है और बल्कि वो बाकी लोगों से बेहतर कर सकता है अगर वो निश्चय कर ले वैसा करने का। Mr. Lamb tells Derry that he has hundreds of friends. The gate is always open. People come in. Kids come for the apples, pears, and for toffee. He makes toffee with honey. Sometimes his friendship may be one-sided. Even if Derry might never see him again, Mr. Lamb would be still his friend. मिस्टर लैम डेरी को बताते हैं कि उनके सैकड़ों दोस्त हैं। उनके गेट हमेशा सभी लोगों के लिए खुले रहते हैं। लोग आते हैं, बच्चे आते हैं वहाँ पर एप्पल्स के लिए, पेयर्स के लिए, टॉफ़ीज़ के लिए। वो टॉफ़ीज़ बनाते हैं शहद के साथ और कभी-कभी उनकी फ्रेंडशिप जो है वो एक तरफ़ा होती है। यहाँ तक कि अगर डेरी भी शायद उनसे दोबारा मिलना ना चाहे तो मिस्टर लैम हमेशा उनके दोस्त रहेंगे। He tells Derry that hating others is bad. It harms more than any bottle of acid. Everything is the same, but everything is different. वो डेरी से कहते हैं कि नफ़रत करना ख़राब है। वो एसिड की बोतल से ज़्यादा ख़तरनाक है। हर एक चीज़ समान भी है और अलग भी। Derry's attitude shows a gradual change. He wants to come there again. He thinks that the other friends of Mr. Lamb might go away if he came. Mr. Lamb assures him that people are not afraid of him because he is not afraid of them. डेरी के एटीट्यूड में, उसके दृष्टिकोण में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है, उसमें बदलाव नज़र आने लगता है। वो वहाँ पर दोबारा आना चाहता है। वो सोचता है कि मिस्टर लैम के बाकी दोस्त जो हैं शायद वो वहाँ से चले जाएं अगर वो वहाँ पर आएगा। मिस्टर लैम उसे एश्योरेंस देते हैं, उसे समझाते हैं कि लोग उससे नफ़रत नहीं करते क्योंकि वो लोगों से नफ़रत नहीं करता। डेरी वॉन्ट्स टू स्टे देयर
but he has to inform his mother where he is. His house is 3 miles away. Mr. Lamb asks him to run there and inform his mother. Derry asks the old man about the persons who come there. He thinks that nobody ever comes there. The old man is there all by himself and miserable. No one would know if he were alive or dead, and nobody cared. Derry says that he will come back. Then Derry runs off. डेरी वहाँ ठहरना चाहता है, लेकिन उसे अपनी माँ को इन्फॉर्म करना है कि वो कहाँ है। उसका घर 3 मील दूर है। मिस्टर लैम उससे कहते हैं कि वो दौड़ कर जाए और अपनी माँ को इन्फॉर्म करे। डेरी मिस्टर लैम से उन लोगों के बारे में पूछता है जो वहाँ आते हैं। वो सोचता है कि वहाँ कोई भी नहीं आता। मिस्टर लैम वहाँ पर अकेले रहते हैं और काफ़ी दुखी रहते हैं। कोई भी नहीं जानता है कि वो ज़िंदा है या मर गए, या कोई भी उनकी परवाह नहीं करता। डेरी कहता है कि वो वापस आएगा और फिर डेरी दौड़कर अपने घर चला जाता है। In the second scene, we see Derry and his mother. He informs his mother about the lame old man. She tells him not to go there. Derry says that he wants to go there, sit and listen to things and look. Nobody else has ever said the things the old man has said. When his mother says that he is best off there, Derry says he hates it there. He no longer cares about his face. It is not important. It's what he thinks, feels, sees, hears, and finds out that is important. He is going there to help the old man with crab apples and to look at things and listen. If he does not go back there, he will never go anywhere in that world again. दूसरे सीन में हम डेरी और उसकी माँ को देखते हैं। वो अपनी माँ को बताता है उस बूढ़े लंगड़े आदमी के बारे में। उसकी माँ उससे वहाँ ना जाने के लिए कहती है। डेरी कहता है कि वो वहाँ जाना चाहता है, बैठना चाहता है और सुनना चाहता है और चीज़ों को देखना चाहता है। किसी और व्यक्ति ने कभी भी उससे इस तरह की बातें नहीं कही थी, जिस तरह की बातें वो बूढ़ा आदमी जो है उससे कहता है। जब उसकी माँ उससे कहती है कि उसका वहाँ रहना, घर पर रहना जो है वो सबसे बेहतर रहेगा, तो डेरी कहता है उसे इससे नफ़रत है। अब वो अपने चेहरे की परवाह नहीं करता है, वो उसके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि वो क्या सोचता है, क्या महसूस करता है, क्या देखता है, सुनता है, क्या पता लगाता है। ये सब चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो वहाँ जाकर मिस्टर लैम यानी कि ओल्ड मैन की क्रैब एप्पल्स कलेक्ट करने में हेल्प करना चाहता है, उनकी बातें सुनना चाहता है, और अगर वो वहाँ नहीं जाएगा तो वो इस संसार में कहीं और नहीं जा पाएगा। The third or last scene is again located in Mr. Lamb's garden. Derry reaches Mr. Lamb's garden painting. He finds Mr. Lamb lying on the grass with the ladder. Derry tells him that he has come back. Since Mr. Lamb fails to respond, Derry kneels by him and begins to weep, and the curtain falls. The play has a very pathetic end. तीसरा और आखिरी सीन फिर से मिस्टर लैम के गार्डन का है। डेरी हाफता हुआ मिस्टर लैम के गार्डन में पहुंचता है और वहां पहुंचकर पाता है कि मिस्टर लैम घास में अपनी सीढ़ी के साथ पड़े हुए हैं। डेरी वहां पहुंचकर उन्हें बताता है कि वो वापस लौट आया है, और चूंकि मिस्टर लैम रिस्पॉन्ड नहीं करते तो डेरी जो है वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और रोने लगता है। पर्दा गिर जाता है। इस प्ले का एंड जो है, इस नाटक का अंत जो है वो काफ़ी दुखद है, पैथेटिक है।